Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of the Ronit Show podcast. And I'd like to welcome Sashi for this conversation. Thank you so much for coming. Hello, Ronit. I'm glad to be here. Hello, everyone. Yeah, looking forward to have this crazy conversation with you on this topic. Like, मैं थोड़ा अपना मतलब सेल्फ टॉक कर रहा था, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये ज़रूर सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. सो आज की कॉन्वर्जेशन इसके अराउंड में होने वाली है. सो आई लाइक टू नो डीपली इन टू दिस कि वेन एवर अ पर्सन एंटर्स इन अ रूम, ठीक है, तो पब्लिक उसके बारे में क्या ओपिनियन किस फैक्टर्स के ऊपर बनाती है. आई लाइक टू नो अबाउट दैट. So, of course, you are very right that first impressions are very important. So, we human beings, have an X-ray machine fitted inside. हमारे अंदर एक स्कैनर फिट रहता है और जैसे ही कोई इंसान हमारे सामने आता है, we just scan that person and form a judgment or an opinion about that person in just 6 to 7 seconds. First, of course, based on the appearance. So, if I give you an example, if you're going to a party, okay, and there is a gentleman, very well dressed, okay, in match suit, and standing in a corner with hands across his chest, okay, and with a lot of attitude on his face, just standing alone. And there's another group where people are very happy and they have open gestures, open palm, they look approachable and friendly, and they're wearing blazers, right? Suppose. So, whom will you approach if you are going to that party? Whom will you approach? The gentleman who's standing alone in a corner, you know, perfectly immaculately dressed, or someone who's dressed in a blazer, not a suit, but looking more friendly, more approachable, and very happy. Whom will you join? The one who is happy and approachable, right? Right. So, of course, so see, first impressions first and foremost about your appearance, your clothes. If you if you don't look decent and uh, you know uh, respectable enough, credible enough, capable enough, then why would I approach you, right? So ABC, appearance, behavior, and communication. But behavior आप बाद में समझते हो. First and foremost, appearance is what appeals you. So the way you think is the way the way you look is the way you think, is the way you feel, is the way you act, is the way others react or respond. This is the image cycle. So first impressions are very important and people really judge you. So you have to look at least decent or appropriate is the right word. You have to be a part of that group or part of that place. So hope I answered your question. या डेफिनेटली. सो इट्स लाइक कि सुपरफिशियल लेवल पे द ड्रेसिंग जो हम अप्रोप्रिएट अटायर पहन के जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, लाइक किसी सोशलाइज इवेंट हो या फिर कोई फॉर्मल इवेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली हम सुपरफिशियल लेवल पे ड्रेसिंग को अपन फर्स्ट इंप्रेशन मानते हैं, राइट? सो अगर हम यूँ कहें कि जैसे एकदम फनी इंसिडेंट याद आ रहा है कि अगर जैसे कोई हल्दी की कोई सेरेमनी हो, उसके अंदर सबने येलो वाला कुर्ता पहना हुआ हो एंड एक बंदे को Right. याद नहीं है कि येलो इज़ द थीम, बट वो रेड या फिर ब्लू पहन गया हो, तो और बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो है पूरा ऑरा जो है और बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो थोड़े चेंज रहेंगे, प्रॉमिसिंग नहीं लगेगा पूरे इवेंट में वो. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि है ना, अगर हम सेकेंडरी अगर माने हैं कि कम्युनिकेशन बेसिस पे, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अटायर सही नहीं हो तो कम्युनिकेशन कैन लीड द द ऑरा. राइट. तो देखो, सबसे पहला वो होता है कि वी वांट टू बी एक्सेप्टेड एज ह्यूमन बीइंग्स. वी ऑलवेज वांट टू बी एक्सेप्टेड. तो उसको आउट ऑफ प्लेस तो लगेगा ना. जो होना है वो तो हो गया. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, because we all are unique in our own ways. So there your behavior and communication will take charge. कि आप अपने बिहेवियर से, आप अपने बर्ताव से, अपने एटिकेट, मैनर्स, कर्टसी, इन सब के कारण हाउ कंफर्टेबल यू आर एंड हाउ यू मेक अदर्स कंफर्टेबल. जैसे वो राज नहीं था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सबका दिल उसने जीत लिया था, राइट? तो उस शादी में विथ हिज बिहेवियर, विथ हिज कर्टसी, विथ हिज एटिकेट, with his communication skills, he can win hearts. So, as I said, it's ABC, appearance, behavior, and communication. A single approach is not going to work. It has to work in tandem. It has to be a holistic approach where appearance सिर्फ 6-7 सेकेंड. लेकिन अगर आप मुझसे बात करें और आपको लगे बहुत एरोगेंट हूँ या मैं ओपन नहीं हूँ, राइट, और आई एम रूड, will you talk to me? Will you go ahead?
नो. सो फर्स्ट इज अपीयरेंस विच विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. आप मुझसे सेकेंड बार क्यों मिलेंगे जब पहली बार आप इम्प्रेस्ड होंगे? So I have to project an impactful image so that you meet me for the second time and then you understand my qualities, my strengths, my weaknesses, my credibility. देखते ही तो किसी की शक्ल पे नहीं लिखा है कि वो credible है. तो पहला opportunity आपको कैसे मिलेगा? So that guy can be really friendly with his other communication skills and behavioral skills. So we always say जहाँ hard skills stop होता है वहां से soft skills शुरू होता है. So soft skills can open doors where other skills cannot, where technical skills also cannot, where dressing bhi aapki, it's all part of the appearance, right? So it has to be a holistic approach. A person has to have that self respect, that self confidence कि ठीक है अब कपड़े तो हो गए बट अब मैं क्या कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं उसी के बारे में सोचती रहूं कि अरे मैंने सही कपड़े नहीं पहने, अरे अब मैं इधर कोने में रहूं वहां कोने में रहूं लोगों से ना मिलूं, नॉट गोइंग टू वर्क. जो हो गया उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो एंड देन सी कि यहाँ पे बेस्ट क्या हो सकता है मेरे बाकी स्किल्स से. गॉट द आइडिया. एंड स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट कि ना जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग के 6-7 सेकंड के अंदर ही कोई बंदा ओपिनियन बना लेता है उसके बारे में जस्ट बाय लुकिंग एट हर और उस पर्सनालिटी उसके बारे में. तो यस ये जो चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपीयरेंस मैटर करता है. डू यू थिंक कि जो अपीयरेंस वो इंडिविजुअल पहन के जा रहा है वो ज़रूरी है कि वो एक्सपेंसिव होना चाहिए या फिर वो उस अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट होना चाहिए जिसमें वो जा रहा है? तो द क्वेश्चन इज़ कि ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है अगर ड्रेसिंग के बारे में बात करें तो, सो दैट टू वेरी लुक गुड दैट क्वेश्चन. ऑरा कि हाँ. A very हम्म good question and relevant question. So most of the people when they approach me, they feel कि अरे we have to have a very extensive wardrobe जहाँ सब कुछ होना चाहिए, branded होना चाहिए, stylish होना चाहिए, hip clothes. So image management is not that. Image management is कि we tell you how to dress up as per your personal style first. क्योंकि आप जो हो, आप अगर मैं उसको change करने की पूरी कोशिश करूंगी तो you'll become fake. So, 4 A's of image management are first and foremost attractive, which we spoke about. Second is authentic. जो मैं हूं वही मैं दिखूं. So, I may go to हम्म a party where people may wear dresses and there may be skin show, but my values are important. I don't wear such dresses. I'm just taking an example, right? So, in my own personal style, with my own values, I can choose the right clothes. Right? So authenticity is very important. And third is affordability. So we try and mix and match your old clothes with new additions. We make clusters. It's not that you always have to wear labels, designer labels or branded clothes. See, style is how you carry yourself. The garment is not carrying you. You are carrying the हम्म garment. So my confidence, my body language, my facial expressions, my hand movement, my communication, everything plays a role. It's not just clothes. Being an image consultant, I'm saying that. So, ऐसा नहीं है कि आपको महंगे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे. मैं 100 रुपए का भी टॉप पहन के अगर मैं कॉन्फिडेंस से उसको कैरी कर सकती हूँ तो किसी को नहीं पता, राइट? और बहुत बार होता है ना, हम्म अभी तो लैब ग्रोन डायमंड्स आए गए तो आपको पता है हाँ, वो इंसान वेल टू डू है. अगर वो लैब ग्रोन भी पहनेगा आप सोचेंगे वो रियली पहना है. इट्स ओरिजिनल आई एम राइट. गिविंग यू वेरी राइट. तो अब मैं अगर कोई कॉपी भी लेके जाऊं तो भी पीपल थिंक आई डोंट कैरी जनरली, बट आई एम सेइंग आई हैव बिल्ड दैट ब्रांड, दैट पर्सनल ब्रांडिंग, दैट इमेज आई हैव बिल्ड. दैट शशि स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिसिटी, शशि स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी, शी स्टैंड्स फॉर क्रेडिबिलिटी. ठीक है, शी स्टैंड्स फॉर एम्पैथी. आई हैव बिल्ट दैट इमेज. So image management, it's an ongoing evaluation and controlling of your appearance and the resulting impact on others. थोड़ा भारी भरकम लग रहा है ना? So it's who you are and what you are all about. मैं जो हूँ हम्म वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, authentic, real, credible, whatever my values are. And so in image management, what do? हम उनकी पर्सनल स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल और उनके रोल्स और गोल्स को देख के हम कपड़े बताते हैं. ऐसे नहीं कि हर एक कोई ओके. ड्रेस पहनना होगा हर एक.
राइट? इफ समवन इज कंफर्टेबल इन अ साड़ी, तो मुझे साड़ी में उनको, अगर वो एक प्रोफेशनल फील्ड में है जहां वो लीडर हैं, तो साड़ी में हाउ कैन शी लुक लाइक अ लीडर, हाउ कैन शी लुक अथॉरिटेटिव, राइट? हाउ कैन हम्म शी लुक ट्रस्टवर्दी दैट पीपल बिलीव ऑन हर? एंड ट्रस्ट और फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कनेक्ट बनाना। तो आपको सामने वाले के साथ कनेक्ट बनाना है, और ये ABC, ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तीनों रिसोर्सेज हैं जिससे आप इंसान से कनेक्ट बनाते हैं। अल्टीमेटली आज आपने मुझे कनेक्ट किया लिंक्डइन में, एंड यू फेल्ट दैट आई कुड टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड देयर विल बी सम वैल्यू एडिशन, दैट इज व्हाई यू कनेक्टेड विद मी। आई सॉ योर वर्क, आई फेल्ट कनेक्टेड, सो आई एम हियर। सो इन लाइफ इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस। अब आप अपीयरेंस से बना सकते हैं इनिशियल, बट इट कैन नॉट बी लॉन्ग टर्म। अगर आपका बिहेवियर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सिर्फ कपड़े आपको या आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। हम्म That's what I believe in. People may have different views, but that's what I have experienced and believe. So, image management is who you are and what you're all about. It is हम्म the unique you that you have to project. Everybody, सब हीरे हैं, हम सिर्फ तराशते हैं, राइट उनको थोड़ा पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा हाँ ग्रूमिंग कर देते हैं कि वो चमके। बीच बीच में होती है ना जरूरत हीरो को भी पॉलिश और थोड़ी सी चमकाने की। So I hope I answered your राइट question. या गॉट द आइडिया लाइक आई थिंक इट्स मोर लाइक कि ना सिंस हमने ड्रेसिंग और कम्युनिकेशन और बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रूम में एंटर कर रहे हो तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप लोग आपको किस तरह से परसीव करें. इट इज़ मोर लाइक दैट थ्रू Yes, ड्रेसिंग ऑल्सो, थ्रू yes. कम्युनिकेशन ऑल्सो, हाउ यू वॉन्ट टू, मतलब उनके ब्रेन से आप किस तरह परसीव होना चाहते हो, दैट ऑल मैटर्स. आई थिंक वही एक ब्रेन और दिल, दिल। यस 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 फॉर श्योर कि कितने Yeah. रिलेटेबल हो आप, क्या स्टोरीज लेकर आ रहे हो, वो सब चीज़ें जो, इफ़ आई टॉक अबाउट सम बिहेवियरल चेंजेस, इफ़ वी टॉक अबाउट बिहेवियर की, अगर कोई किसी सोशल इवेंट में जा रहा है, और अगर वो अपने बिहेवियर में कुछ ऐसी गलती कर दे कि उसका जो टोटल पर्सनालिटी है वो डिमीन हो जाए, तो कौन कौन से ऐसी वो चीज़ें ना करे इफ़ समवन इज सोशलाइजिंग इन एन इवेंट, जो कि उसकी पर्सनालिटी पे वो नहीं हो, आज नहीं आए. Right. So देखिए, सबसे पहले so I'll talk about Albert Mehrabian's theory. So Albert ओके. Mehrabian is a famous philosopher, and he says that 93% of your communication is non-verbal. So non-verbal में again ओके. कपड़े आ गए, appearance, your head movement, हम्म your hand हम्म movement, your smile, your facial expressions, your laughter, right? The pauses, ओके. the stress, your talking skills, everything. So non-verbal communication 93% है, ठीक है, और 7% सिर्फ शब्द है, ठीक है। तो 93% हम्म में जब हमने बातें की वो सारे आती है। अब सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रही हूँ, स्टाइलिश लगना जरूरी नहीं है, बट देयर आर 5 थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू गो फॉर एनी मीटिंग, एनी ओकेजन, कि हु एम आई मीटिंग, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मैसेज दैट आई वांट टू सेंड अक्रॉस, ठीक है, एंड वेयर एंड व्हेन आई एम गोइंग। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। अगर आपका वो सही रहे तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग सही होगी, क्योंकि अगर मैं किसी हम्म सीईओ से मिलने जा रही हूँ तो आई वुड वेयर अ ब्लेजर और अ मैच सूट, कि मैं इक्वली एट पार लगूं, राइट? एंड देन मैं दिन में जा रही हूँ, रात में जा रही हूँ, दैट ऑल्सो मैटर्स। वी वेयर लाइटर क्लोथ्स इन डे टाइम एंड डार्कर क्लोथ्स ड्यूरिंग इवनिंग्स और नाइट पार्टीज और गैदरिंग्स, राइट? एंड मेरा मैसेज क्या है, क्या मैं एक इमेज कंसल्टेंट की तरह, सो आई थिंक वॉक द टॉक। मैं जहां भी जाती हूँ आई वॉक इन एज एन इमेज कंसल्टेंट। अभी भी आपने देखा मैंने कोई ड्रेस है बहुत है या वैसा नेक पीस कुछ नहीं पहना है, दिस इज शशि एंड दिस इज व्हाट आई रिप्रेजेंट, ठीक है। सो एथिक्स एंड वैल्यूज इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से कि आप बिहेवियर में ध्यान रखिए। अगर आपके वैल्यूज और एथिक्स राइट है, आपका एटिकेट एंड सॉफ्ट स्किल्स इज हाफ डन। सेकेंड इज रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। कभी भी किसी को बेइज्जत मत करिए। आप हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, बट किसी को आप डिमीन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद का रिस्पेक्ट करिए और दूसरों का रिस्पेक्ट करिए। दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए। हम बात करते रहते हैं, हम इंटरप्ट कर देते हैं, राइट? किसी को पूरा हम्म बोलने नहीं देते हैं। तो पहले 90% इज लिसनिंग,
10% बोलो, तो आप ज्यादा समझ पाओगे कि तो ग्रुप में सबने कहा, सबने ऐड किया, सपोज 5 जन खड़े, आपने सबका सुना, लास्ट में आपने सबको एसिमुलेट करके अपना एक नया पॉइंट बोला और बहुत इम्पैक्टफुल सोच समझ के बोला, पीपल विल रियली लुक, अरे ये कौन है, राइट? ये नहीं कि पहले जाके अपना ही गुणगान करना, तो सुनो पहले, लिसनिंग, एम्पथी, दूसरों के जगह पे अपने आप को रख के सोचो, पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज. सो आई थिंक एथिक्स वैल्यूज अगर करेक्ट है, आपका रिस्पेक्ट है अपने लिए और दूसरों के लिए, आप खुद कंफर्टेबल हैं, दूसरों को कंफर्टेबल बनाते हैं आप, और एम्पथी रखते हैं, ह्यूमैनिटी रखते हैं, आई थिंक आपको और कोई सॉफ्ट स्किल की जरूरत नहीं है. बाकी सब देखिए तामझाम है कि कैसे खाना है, कैसे कटलरी उठानी है, यू नो. बट अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग है, आपकी स्माइल, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अप्रोचेबल, एंड जो हैंड जो होता है, अगर पाम डाउन रहता है तो यू लुक अथॉरिटेटिव ना, हमें अभी खाना खाना है, और अगर मैं बोलूं हमें अभी खाना खाना है, तो यू आर आस्किंग इन द ग्रुप कि अभी खाना खाना है, दिस इज ओपन. तो कोई बोल सकता है नहीं यार, पहले गिफ्ट दे देते हैं दूल्हा दुल्हन को फिर चलते हैं, नहीं तो कि अभी खाना खाना है मतलब, राइट? सो ओपन पाम्स, स्माइल, ओके. नॉडिंग, जब कोई बोल रहा है तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे कोई बात कर रहा है और आप फोन पे लगे हुए हैं, so that is highly disrespectful. These are the basic things that one should always keep in mind when approaching someone in a social gathering, or if it is one on one meeting, or any place, any space, whether it's personal, professional or social. ये चीजें आप ध्यान रखेंगे. बाकी चीजों को सीखने के लिए जो नुआंसेस है, मेरे जैसे इमेज कंसल्टेंट है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, so yeah, राइट. I think humanity and basic respect is etiquette, communication is the biggest soft skill for me. And that's what I endorse as an image consultant and soft skill trainer. आप लोगों को मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा. आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू मेक. अगर आप इसी तरीके की कॉन्वर्जेशन पसंद करते हैं एंड मैं हर वीक ट्राई करता हूँ कुछ एक्साइटिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ये अपने दोस्तों को दिखाइए. इसी तरीके की मनोरंजन टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है. लाइक अगर मैं ऐसा सिनेरियो बनाऊं कि एक बंदा है, वो पूरा वेल ड्रेस्ड है, एंड ही एंटर्ड इन द रूम, कोई कॉन्वर्जेशन चल रही है किसी टॉपिक के बारे में, एंड आई हैव अ व्यू पॉइंट जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ, एंड देर इज़ अ पर्सन जो कि मुझे बार बार है ना इंटरप्ट कर रहा है बीच में, जैसे आपने सेकंड पॉइंट जो बताया. सो मुझे किस तरह से उस चीज़ को टैकल करना है, क्योंकि मुझे वो बार बार इंटरप्ट कर रहा है एंड आई डोंट लाइक इट. मैं इतना ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होकर आया हूँ, पूरा मेरा ऑरा प्लस में चल रहा है, तो मैं कैसे उसको टैकल करूँ, बी मतलब यू नो एक इंटीग्रिटी बनाते हुए, सो दैट मेरा वो उस वाला सेकंड कैरेक्टर में नहीं आऊँ मैं, वो कैसे कर सकते हैं? Right. देखिए, again, as I said, politeness is very important and being assertive. Assertiveness क्या होता है कि मैं अपने राइट के लिए खड़ी रहूं और मैं आपके राइट्स को भी रिस्पेक्ट करूं. I respect myself, I respect you. I express my views and I let you also express your views. Right? So that is assertiveness. Okay? तो यहाँ पे ओके. अब जो ज्यादा इतना बोलते हैं ना, एक्चुअली वो सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से दे कैन सेल देमसेल्व्स, या दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि अरे मैं कौन हूँ, राइट? और so they talk, some people are talkative by nature, ठीक है, they are राइट. extroverts. हो सकता है उनका कोई बुरा इंटेंट ना हो, तो सबसे पहले आप उनको समझो कि हाँ ठीक है, हो सकता है ये ज्यादा बोलता है, हो सकता है इसको यहाँ पे कुछ बिजनेस चाहिए इसलिए ये, या अपना थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है. तो अब हम भी उसी लेवल पे आ जाए तो हमें और उसमें फर्क क्या है, राइट? तो हम बहुत पोलाइटली जब वो कंप्लीट करे, आप या फिर आप उनको कैन आई इंटरप्ट एंड ऐड समथिंग टू दिस, क्योंकि वो अगर पॉज ले ही नहीं रहा है, बिल्कुल आप हाँ. रुकिए, पहले वो पॉज ले ले तो आप बीच में आइए. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस. आई टोटली अग्री विथ यू. हाउ एवर, बट शब्द की जगह अगर आप लाइफ में हाउ एवर लेके आए तो आई थिंक इट इज वेरी अमेजिंग कि रोनित आप ये बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ बट नहीं, हाउ एवर I have a different ओके. opinion, or I agree to disagree. I agree to disagree. ठीक है? Or there may be different perceptions and my view is this. And I respect your views. However, तो वो तुरंत रुकेगा. आप उसको पॉज करेंगे और आप कैन आई ऐड, तो फिर आपने उसको बोल दिया, अब वो आपको बीच में नहीं टोकेगा. अगर कोई ऐसे बोलता है तो प्लीज let me finish and then we'll hear you out. So you can do that. ओके. So please let me, however, smile, approachable,
कि यार मुझे नहीं, अब हम चिढ़ गए, फ्राउन आ गया, यार ये तो बक 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 किए ही जा रहा है, किसी को बोलने ही नहीं देता है, और फिर भी कोई ना माने, तो आई थिंक यू कैन टेक अ बैक सीट। पूरी दुनिया के साथ तो आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती ना रोनित। ठीक है, सबके हम्म साथ हम पोलाइट रहेंगे, सबके साथ हम डिसेंट रहेंगे, हम गुड ह्यूमन बीइंग रखेंगे, लेकिन कनेक्ट हर एक के साथ नहीं बिल्ड होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वाइब मैच, देन यू कैन मूव ऑन टू समवन एल्स, यू कैन टेक अ बैक सीट and politely excuse yourself. Kindly excuse me, I really have to meet a friend of mine. See, आपको वो हैंडल करना, वहां अगर आप गुस्सा हो गए, इफ यू आर एंग्री, इफ यू डोंट हैव पेशेंस, सो पेशेंस इज द वर्ड, एम्पथी एंड पेशेंस, समझो कि ठीक है, फिर आप जितना सुन सको ठीक है, आई नो सम पीपल रियली क्रॉस देयर लिमिट्स, then you can politely say, can I add something to it, however I have a different view on this, and या फिर whatever you said is totally correct, now I want to add something more to it, तो आपने इसकी बात काटी नहीं है, राइट? तो उसका उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी सही जगह पे रहता है। सो दिस इज हाउ आई थिंक अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन एंड टेक यू टू डिफरेंट लेवल्स इन लाइफ। काफ़ी सारे जो, अगर जैसे लड़कों की बात करें तो अगर कोई ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा होता है ना, तो उसको एकदम से तेज बोल देते हैं, अरे चुप बैठिया, बोलता रहता है दिन भर ही। सी अगेन, रिलेशनशिप मैटर्स। मैं तब बात कर रही हूँ जब आप एक नेटवर्किंग इवेंट में या एक सोशल गैदरिंग में आप किसी अक्वेंटेंस या फिर किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, राइट? दोस्ती में तो फॉर आप द कुछ भी फर्स्ट कर टाइम, सकते हैं राइट? वहां पे। यस यस यस। तो दोस्ती, सी ये एटिकेट, ये सब हम दोस्तों में कहाँ है, वहां तो यू नो द हम्म बॉयज यूज सच गुड वर्ड्स व्हिच आई कांट यूज नाउ। सो तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका उस इंसान से अगेन कनेक्ट। अगर ऐसा कनेक्ट है, अब मैं आपको 4 गालियां भी दूंगी तो आपको लगेगा यार प्यार से। अगर मैं हम्म आपको एक फीडबैक दूं, रोनित, आई थिंक तुम्हारे पॉडकास्ट में ना ये चीजें तुम बदल सकते हो, हम्म लेकिन पहले मैं वो परमिशन लूंगी, पहले मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूंगी। हमेशा ओके आप देखिए, लाइफ में ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, पहले उसकी अच्छाई बताइए, एंड देन आप बोले कि इफ यू वांट, यू नो, आई कैन गिव यू सम इनपुट्स व्हिच आई ऑब्जर्व्ड, तो आप बोलेगे यस यस, इट्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड, तब आप बुरा नहीं मानोगे, मैंने आपसे परमिशन लेके आपसे फीडबैक मांगा है, राइट? तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, हर इंसान की पहले अच्छाई देखिए। हम किसी से भी मिलते हैं, व्हाट डू, वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द नेगेटिव थिंग्स, ऐसा होता है कॉमनली, लेकिन बहुत सारे हम्म लोग हैं, दुनिया वैसे चल रही है तो अच्छे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सो आई हम्म डोंट वांट टू गिव एनी नेगेटिव इंटोनेशन, मतलब कि आप अगर खुद अच्छे इंसान हैं, सबको रिस्पेक्ट करेंगे, आप खुद से प्यार करते हैं, सबको प्यार करेंगे, ह्यूमैनिटी रखेंगे, तो लाइफ बहुत कूल होगी आई थिंक। और हमेशा सबकी पहले पॉजिटिविटी देखिए, उसके बाद उसको पूछिए अपने आप, अपने मन से, हु आस्क्ड यू, कोई बोल सकता है ना, लेकिन आप परमिशन लेके अगर बोलते हैं कि डू यू नीड, यू नो, आई कैन गिव सम इनपुट्स इफ यू नीड, इफ यू थिंक, then nobody is going to mind, nobody is going to take offense कि why did I, you know, say something about it. तो और दोस्ती यारी इसको अलग हटा देते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स और एटिकेट। जैसे लोग मुझे बोलते हैं, अरे टपरी में हम अब कुल्हड़ की चाय पीने जा रहे हैं, अब वो सुर्खी मारे बिना, मतलब दैट स्लर्प एंड मज़ा नहीं उसके बिना आता। मजा ही नहीं आता, तो वहां पे वो करो, दैट इज नॉट फाइन डाइनिंग एटिकेट। हाँ बट जब मैं फाइन डाइनिंग एटिकेट की बात कर रही हूँ, तब वो है कि जब आप टेबल पे बैठे हो और 10 लोग बैठे हैं, आप डिनर टेबल पे हो, आप कोई 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में भी हो, या फिर कोई ऐसे सोशल गैदरिंग में हो जहाँ कोई ओकेजन सेलिब्रेट हो रहा है, तो आपकी आवाज से किसी और को परेशानी ना। इफ़ यू टॉक अबाउट, यू नो, जो जिस तरह से हम ग्रूमिंग करते हैं अपनी, तो व्हाट्स द मोस्ट अंडररेटेड ग्रूमिंग की हैबिट दैट मेक्स पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली? ठीक है, सो आई थिंक बॉडी ओडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मैं तो उस पे ही आने अगर वाला था। कपड़े हाँ, थोड़े आए आए, इट्स अ बिग पुट ऑफ फॉर मी। अगर कोई यस आया है, यस अगर उसके सॉक्स स्मेल कर रहे हैं या द बॉडी ओडर इज देयर, आई एम कंप्लीटली पुट ऑफ, बिकॉज मेरा थोड़ा सा, मेरे, इट्स नॉट कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मुझे बैड स्मेल से बहुत प्यूकिश फील होता है। सो कभी जैसे कोई पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़े, इफ देयर इज अ बैड स्मेल आई विल प्यूक, मुझे वो वॉमिटिंग टेंडेंसी है। बट हैविंग सेड दैट, bad odor is a very big put off. So I think we live in a tropical country. It's humid almost everywhere in India.
आप हिल स्टेशन छोड़ दिए, तो वी स्वेट अ लॉट, तो वी टेंड टू स्मेल बैड। तो हमेशा एक डिओड्रेंट या परफ्यूम यूज करना इज मैंडेटरी, आई फील। सी, अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, कभी कभी मैं काजल भी नहीं लगाती हूँ, आई जस्ट पुट अ मॉइस्चराइजर, बट आई अप्लाई अ डिओड्रेंट और अ परफ्यूम, बिकॉज आई थिंक योर स्मेल, योर बॉडी ओडर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स योर सिग्नेचर ऑल्सो। जैसे आप रूम में एंटर करते हो, लोगों को पता है इस खुशबू के साथ कनेक्टेड है शशि का प्रेजेंस। So हम्म for men especially, perfume is a signature factor, right? It's an element of dressing which really impacts. तो देखो, ओडर है, और दूसरा है कि ऑफ कोर्स आपके, लोग बोलते हैं कि आपके जूतों से पता चलता है आपका पर्सनालिटी, कि आपने पूरा अच्छा ड्रेसअप किया है, जूते पूरे गंदे हैं आपके। ये चीज हम इग्नोर कर जाते हैं। मैं वो बातें बोल रही हूँ जो हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि कपड़े हम अच्छे पहन लेते हैं, आयरन, मैं ये बेसिक समझ रही हूँ कि आयरन कपड़े, तो पहले आयरन कपड़े हो, स्मेल ना करे, और जूते आपके साफ हो, बाल आपके बिखरे हुए ना हो। आप मेकअप करो ना करो, एक्सेसरीज ऐड करो ना करो, दीज आर द बेसिक थिंग्स। क्लीन आयरन क्लोथ्स, जो बहुत बार नहीं होता है। सेकेंड इज स्मेलिंग सॉक्स, तो वी शुड चेंज सॉक्स एवरी डे, हम जिस वातावरण में, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं। जूते, आपके जूते, बहुत सारे लोग जूतों से ये, मतलब ये आपके ऊपर एक जजमेंट निकाल लेते हैं कि भाई इसका जूता ही साफ नहीं। हम्म तो शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एंड ऑफ कोर्स हेयर, एंड आई थिंक स्माइल इज द बेस्ट एक्सेसरी दैट वन कैन कैरी। यस हो सकता है आप बारिश में भीग गए हो गए आप, हो सकता है आपके जूते खराब हो गए, आप कहीं से आ रहे थे इन मुंबई, मेट्रो में, लोकल ट्रेन्स में लोग ट्रैवल करते हैं, सो ऑल दैट कैन हैपन, बट कैरी दैट बिग स्माइल। It can take you miles. I always say smile can take हम्म you miles. So it's the biggest accessory. यस Inexpensive है, कुछ पैसे नहीं लगता, बट हम कंजूस है, वी आर माइजर्स, हम उसको यूज नहीं करते। So use a smile, and I think your soft skills can carry you anywhere, even if you are not properly dressed because of some reason. However, having said that, एक decent होना जरूरी है, बट ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ सकती है ना। इसमें हम जो परफ्यूम कैरी करते हैं वो भी अपनी एक पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, किस तरह का परफ्यूम हम यूज़ करते हैं, लाइक फॉर मैन एंड यस, वुमेन वो बोथ। करता है। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ का वुडी स्मेल होता है, कुछ का स्मोकी होता है, कोलोन, ये सब राइट सब चलता है, बट देखिए वो पूरा फिर वो किस किस फ्रेग्रेंस का क्या अ, है, जैसे एनर्जेटिक किससे लगते हैं वैसे। बट हाँ आई थिंक वो लेमन वाला फ्लेवर, वो मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ लगता है, और फ्लोरल कुछ मत राइट यूज करिए, वेरी स्ट्रॉन्ग, डोंट यूज स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, बिकॉज मेरा चॉइस ऊद हो सकता है, आपको वो स्ट्रॉन्ग लग सकता है। मेरा हम्म जनरली इत्र आप देखते हैं बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिए, माइल्ड फ्रेग्रेंस लीजिए, जिससे कोई पुट ऑफ, कोई आता है तो मेरे सर में दर्द हो जाता है कि अरे यार ये कब जाएगा, क्योंकि उसका परफ्यूम इतना स्ट्रांग है। सी, कुछ लोग हम्म डोमिनेटिंग दिखना चाहते हैं, वो परफ्यूम से होता है। आप ऊद पहन के, आप लगा के कहीं जाते हो, तो वो एक बहुत स्ट्रांग स्मेल है। तो your perfume is your signature style, but don't use very strong perfumes. Use mild, which is pleasant for everyone. फ्लोरल लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं, मुझे तो लड़कियों के लिए भी कम पसंद है, बट या गर्ल्स आर दैट्स माय पर्सनल चॉइस, बट बॉयज नो फ्लोरल सेंट्स। गर्ल्स ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल सेटिंग, ऑफिस के लिए नो फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस, इट हैज टू बी सटल, इट हैज टू बी वेरी pleasant, I would say. Yes. ओके like we talk about grooming and everything, if I talk about just have you mentioned previously कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, how you gesturing, किस तरह से हैंड मूवमेंट है, अगर आप ज़्यादा अपने फेस पे हाथ लगा रहे हो, सो आप मुझे थोड़ा क्लासिफिकेशन बता सकते हैं कि अगर सेकंड बंदे में मैं ऐसा चीज़ें देख रहा हूँ कि वो थोड़ा नर्वस है या ऐसे बैठा है या ऐसा कुछ जेस्चर्स कर रहा है, तो मैं कैसे क्या ये वाले जो जेस्चर्स हैं किस तरह डिनोट करते हैं किसी चीज़ को, एंग्जाइटी को, या फिर थोड़ा उस वाले वे में बताइए। ओके, हाँ, तो मैं ये बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि आप एक इंटरव्यू पैनल में हो, अब आपके सामने एक इंटरव्यूई आया है, तो आप उसको कैसे असेस करते हैं, राइट? तो अभी क्या होता है कि जैसे ही मैं बार बार अगर मैं ऐसा रखती हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ, या फिर मैं ऐसे डाउट कर रही हूँ, राइट? बहुत, उसकी जगह अगर हम्म मेरा ऐसा रहे, तो
यू नो आई एम ओपन, मैं आपको, और जैसे ये क्लोज जेस्चर हुआ, आई एम यस नॉट, आई एम डिफेंसिव, आई एम क्लोज्ड, राइट? तो ये सारी चीजें होती है। और फिर पैर शेक करते हैं लोग, पेन, पेन के साथ पेन खोलना बंद करना, ऑल दिस इज नर्वसनेस, एंजाइटी। आप इम्पेशंस भी दिखाता है आपका। तो पैर बहुत ज्यादा, और लोग ऐसे भी चेयर में, परसों ही मैं एक चेयर को इधर से उधर व्हील्स के साथ झूल रहे हैं। सो आप उस इंसान को तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना, तो आपका पोस्चर इरेक्ट हो, आई कांटेक्ट भी नहीं है। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, जनरली आप देखेंगे झूठ बोलते हैं तो लोग कहीं और देखते हैं, आपकी आंखों में आंखें नहीं मिलाते हैं। दे अवॉइड दैट आई कांटेक्ट विथ यू बिकॉज झूठ बोल रहे हैं, राइट? सो आपके आई कांटेक्ट से आपके कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं, आपकी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दिखती है। बोलते हैं ना, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। सो अगर मैं यस आपसे बात कर रही हूँ और आप, मैं नीचे देख रही हूँ या कहीं और देख रही हूँ या फिर बहुत ऐसे से ब्लिंक कर रही हूँ, तो आई एम नर्वस, आई एम टेंस्ड, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है? और फंबल करना, ये सब तो लोगों को लगे ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। पैर हिलाना, ठीक है? और फ्राउन, हमेशा फ्राउन रखना, ये सारे एक्सप्रेशन है। एंड अगेन एज आई सेड कि वो नीचे होना, या फिर यू नो पाम हमेशा नीचे रखना कि आप अथॉरिटेटिव हो, उसकी जगह ओपन पाम होना, ठीक है? एंड हैंड, जैसे मैं बोल रही हूँ रोनित, आई लव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, आई लव दिस कॉन्वर्सेशन, उसके साथ, या फिर 1 2 3 आई एम डूइंग दैट, राइट? सो ऑल हाँ दीज हाँ हैंड मूवमेंट्स दे प्ले अ वेरी, वो एम्फोसाइज करना, दिस इज द वे यू शुड डू इट, या 1 2 3, राइट? 1 2 3, आप इसको ऐसे ब्रेक करके, सो ऑल दीज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, एंड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ इमेज, आपके सेल्फ वर्थ को दिखाता है। और जबकि यही सारे जो नर्वसनेस वाले, मैंने बोला, या जोर से हंसना, या फिर या छींकते समय ऐसे हाथ रखते हुए, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड करके मैं पीछे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि राइट हैंड से मैं शेक करती हूँ, जनरली हम राइट हैंड शेक करते हैं ना ओके hand। तो हाँ हाँ आप छींक रहे हो तो आप यही हाथ, तो टिश्यूज यूज, तो ऑल दिस शोज योर हाइजीन ऑल्सो। और राइट हाइजीन से ये भी पता चलता है ये इंसान इतना मेटिकुलस है, इतना डिटेल ओरिएंटेड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये एक अच्छा लीडर बन सकता है, ये एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है, राइट? जो बात काटता है वो कभी भी एक टीम प्लेयर नहीं बन सकता है। वो सुन के अग्री टू डिसअग्री, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो लगेगा हाँ ये टीम प्लेयर है, ये सबकी बात भी सुनेगा, साथ में भी चलेगा। तो लाइफ में आपके डिफरेंट सिचुएशंस और सिनेरियोज आएंगे, वो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कुछ भी हो, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आप किस तरह के इंसान हो, वो प्रोजेक्ट करते हैं। अभी हम पावर पोजिंग भी सिखाते हैं कि अंदर तो आई डोंट नो वो लैंग्वेज फटी हुई होती है कि अंदर एकदम आप डरे हाँ हुए हो, लेकिन आप वॉशरूम में जाके यू डू पावर पोजिंग, आई हैव द पावर, दैट सुपरमैन, आई एम दिस, दैट इम्पैक्ट्स योर साइकी। तो आपका बॉडी लैंग्वेज आपके मेंटल साइकी को भी इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही मैं स्लाउच करूं, मैं ऐसे हूं, तो दुखी, कंफ्यूज्ड, नेगेटिव वैसे दिखता। जैसे ही मेरा स्माइल आता है, शोल्डर्स इरेक्ट हैं, बॉडी पोस्चर एकदम सही है, तो आई लुक कॉन्फिडेंट। एंड पावर पोजिंग, ऑल दैट वी टीच, कि जिनको पब्लिक मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, तो आई आई हैव द पावर, ही मैन टाइप्स, वैसा जाके आई एम अ सुपर वुमन, ऐसा कुछ भी सुपर वुमन ऐसा करने से प्लस, जैसे आप करेंगे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एंड देन एफर्मेशन, कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गुड द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, राइट? आई एम यस हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, ऐसे तरह के करते ही इमीडिएटली आपका देखेंगे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, right? So your appearance, your body language, it has an impact on your mental, emotional, psychological, physical, all health, all kinds of wellness, I would say. लाइक एक मेरे पास ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जैसा कोई पैनल डिस्कशन में हो, ठीक है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग ऑन अ चेयर, एंड जो आपका कैमरा है वो जस्ट आपके इन फ्रंट में लगा हुआ है। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कभी कभी अपना हाथ ऐसे रख लेते हैं, दे आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस, Down. connecting all the fingers. Yes. So
अप्रोप्रिएट प्रॉमिसिंग जेस्चर कौन सा होना चाहिए अगर सामने ही मेरे लेग्स भी दिख रहे हैं सामने और मैं ऐसे भी बैठा हूँ, तो ऐसे रखने चाहिए हाथ या फिर ऐसे डॉट्स रखने चाहिए, मतलब फिंगर्स एकदम टच्ड? फिंगर्स मतलब टच्ड या ऐसे देयर शुड बी अ यस गैप, यस वो बोल रहे हैं? हाँ, सो यस, कोई सा जो स्टीपल एक सा होता है। प्रॉमिसिंग हो। सो स्टीपल, ओके। सो जब हम बैठते ओके। हैं तो इफ इट्स अ स्टीपल, हाँ इट्स और ऐसे जब मैंने वो मुद्रा उद्रा के एंगल से देखा, मैंने एक सेशन अटेंड किया था, तो इसमें भी बहुत पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस वाला मुद्रा है ये। तो आप बहुत इम्पैक्टफुल लगते हो, तो दिस इज व्हाट समवन कैन कीप। या फिर ऐसे हाथ ऐसे खुले रहेंगे, देखिए जैसे मैं भी बात कर रही हूँ, अगर ये ऐसे है हम्म। एंड आई टॉक लाइक दिस, व्हाट इज लुकिंग बेटर, आप देखिए हम्म। ऑब्वियसली यस। इस तरह तो नहीं। डाउन पाम वो जेस्चर्स मत रखिए। और टू मच ऑफ हैंड मूवमेंट भी करते हैं लोग कभी कभी, बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे किया फिर ये हुआ, सो बहुत वो ब्रेक करता है आपके एक फ्लो को बोलने के। तो एक सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए, राइट? अब मैं पूरे टाइम ही ऐसे, तो वो है, आई थिंक, या क्लोज फिंगर्स, वो डाउन मत रखिए। एंड स्टीपल इज समथिंग दैट कैन बी डन। कुछ नहीं हो तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड एनफ, क्योंकि आप बैठे हो। सो दिस, और जस्ट ओपन, मतलब क्लोज ना हो, ऐसे ना बैठे। जितना आपका बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल, जितना पॉजिटिव, जितना कॉन्फिडेंट होएगा, आई एम टेलिंग यू 93% ऑफ द थिंग्स आर डन। और स्माइल रखो और हम्म। नॉड करो। नॉडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब बोल रहे हो मैं नॉड करूं, हाँ हाँ ओके, और आप बोल रहे हो मैं जस्ट ब्लैंक हूं, आपको लगेगा मैं सुन नहीं रही हूँ। आप बोल रहे हो मैं कहीं और देख रही हूँ। तो आप पैनल डिस्कशन में हो, दूसरे स्पीकर्स जब बोल रहे हैं, आप नॉड करो, स्माइल करो, अक्नॉलेज करो, यस ये इस तरह, या एंड देन क्लैप फॉर ईच अदर, अप्रिसिएशन। सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल फील हाँ ये कितनी कॉर्डियल है, सबके साथ मिलनसार हम्म। है, सबको रिस्पेक्ट कर रही है, स्माइल कर रही है। आपको भी लोग सुनेंगे, दे विल रेसिप्रोकेट। देखो लाइफ में हम सोचते हैं पहले हमको मिलना चाहिए फिर हमें देना चाहिए, बट आई देना। थिंक फर्स्ट गिव टू गेट इन लाइफ। पहले रिस्पेक्ट यस। दो, पहले आप सुनो, आप अप्रिसिएशन करो। आप थोड़ा सा ऐसे लीन इन होना, आप बात करें और मैं ऐसे, तो आपको क्या लगेगा? अरे ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप बात कर रहे हैं, मैं कैफे में बैठी हूँ, इधर उधर देख रही हूँ, इतना डिसइंटरेस्टेड। और जैसे ही मैं लीन इन करती हूँ थोड़ा सा, ऐसे भी नहीं पूरा, थोड़ा सा लीन इन करती हूँ, तो रौनित को क्या लगता है, हाँ शशि सुन रही है। सोचिए कितना इंचेस का फर्क है, कितने इंचेस का फर्क है। ये इतना ही लीन, ऐसे ही पूरा झुकने भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि स्टूप नहीं होना है, बट आई एम राइट। शोइंग इंटरेस्ट दैट वट एवर यू आर टॉकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम लिसनिंग टू यू। वो गाना है ना, सुन रहा है ना तू। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ह्यूमन बींग्स हमें वो एक्नॉलेजमेंट, वो वैलिडेशन कि कोई हमें सुन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली अमेज्ड टू सी कि छोटी छोटी चीज़ें हाउ इट मेजरली इम्प्रूव्स समवन पर्सनैलिटी, और कैसे परसीव वैल्यू बनती है सामने वाले के प्रति। या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं हर इंसान के साथ देखती हूँ, आम मर्रा जिंदगी में रोज देखती हूँ, वो सारी मैंने रौनित बोली है। और जो सुन रहे हैं द ऑडियंस, आई थिंक कुछ कुछ भी इसमें से उनके काम आए तो दैट विल बी, आपका और मेरा वक्त जो हमने आज यहाँ इन्वेस्ट किया वो फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा। फॉर श्योर तो फॉर जस्ट श्योर। दिल से, एंड यू केप्ट इट इम्प्रॉम्प्टू, तो आई एम हैप्पी। जो है मेरे दिल में मैं स्ट्रेट बोल रही हूँ, इट्स नॉट प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। सो आई यस। लाइक दिस स्टाइल, आई लाइक दिस स्टाइल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में ना स्क्रिप्टेड होता है, ये सवाल आने वाले हैं। तो अभी मुझे पता ही नहीं है रौनित नेक्स्ट सवाल क्या है, तो जो आ रहा है एकदम स्ट्रेट, इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट, एंड आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। चलिए या बताइए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप आई एम एडिंग वैल्यू, बिकॉज अभी मैं फीडबैक ले लेती हूँ जितना समय बाकी है। So I have a story which I like to cover in this section. I like to know, people who are appearing first time for an interview. ठीक है, तो उनको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो गलती करते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, और अपना वो जो ऑरा होता है, जस्ट ना, जैसे वो अपने रूम में एंटर करते हैं, इंटरव्यूअर सामने बैठा हुआ होता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर अ इंटरव्यू?
Okay, so see, we have already spoken about dressing. हमने आयन Yes. जूता मोजा सब बातें कर ली है. वी हैव Yes. स्पोकन अबाउट नो ओडर एंड सुपरफ्यूम. सो वो तो आपका इन प्लेस है, मैं मान रही हूँ. उसके बाद द सी, अभी जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है तो ये दिखाना कि आई नो इट ऑल. मुझे तो इस सब्जेक्ट में आई एम द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ दिस टॉपिक. अगर आपने वो पोर्ट्रे किया ना, तो देन द अदर पर्सन विल आस्क यू मोर क्वेश्चन, विल प्रोब. बिकॉज आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, आपके एडुकेशन के हिसाब से दैट पैनल हैज बीन डिसाइडेड, राइट? सो डोंट ट्राई टू शो दैट यू नो इट ऑल. एंड सपोज आपने Okay. क्वेश्चन पूछा, और जैसे आपने अभी फ्रेग्रेंसेस का पूछा, अब मैं एक एक फ्रेग्रेंस का मैं नहीं बता पाऊंगी, तो मैंने बोल दिया देखो वो Hmm. तो बहुत लंबा है, पर हाँ. वो आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, राइट? मुझे इतना Yes. याद रखने की अभी मैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट? तो मैंने मान लिया कि मुझे हर एक फ्रेग्रेंस का क्या उसका मैसेज है वो मुझे अभी सारे याद नहीं है, तो मैंने मान लिया यहीं पे, राइट? तो वैसे ही जब जो चीज आपको अगर आती नहीं है, तो ये मान लेना कि आई हैव लिमिटेड इंटरेस्ट और आई हैव लिमिटेड नॉलेज इन दिस एरिया, इन दिस डोमेन. हाउएवर, आप उस कॉन्वर्सेशन को वहां पे ले जाएं जहां आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. लाइक इफ यू स्पोक अबाउट फ्रेग्रेंसेस, ठीक है? अब आपने बोला यार इत्र कौन सा लगाना चाहिए. अब मुझे और इत्र के बारे में आप ज्यादा पूछो और मुझे लिमिटेड नॉलेज है इत्र के बारे में, हो सकता है परफ्यूम्स के बारे में हो, तो मैं अगर ये बोलूं कि हाउएवर मैंने उसकी मार्केटिंग देखी और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ सपोज, तो मैं इत्र के बारे में आई हैव लिमिटेड नॉलेज बोल के, हाउएवर आई थिंक कौन सा इत्र बेस्ट होगा, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, उससे भी फर्क पड़ेगा. और मैं उसको पूरा मार्केटिंग पे Hmm. ले जा रही हूँ उस पूरे कॉन्वर्सेशन को. Okay. तो बहुत स्मार्टली हाँ. आप उस कॉन्वर्सेशन को वहां ड्राइव करें जो आपका फोटे है, जो आपका यूएसपी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है और इम्प्रॉम्प्टू आंसर देंगे एंड यू नो लाइक यू, मतलब ऐसे जो हम ये यूज करते हैं ना, जो बीच बीच में ऐसे शब्द, ओके, आई नो, यू नो, मतलब ये हम खाली एक समय लेते हैं कुछ सोचने के लिए, उसके लिए हम ये बीच में ये वर्ड्स यूज करते हैं. उसकी जगह अगर मैं बोलूं कि रोनित, आई थिंक जस्ट गिव मी 30 seconds, आई वांट टू कलेक्ट माय थॉट्स एंड आई वांट टू प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे. आई जस्ट नीड टू Right. collect my thoughts and I need to think for 30 seconds. Can I take 30 seconds? आप उसको अप्रिशिएट Hmm. करोगे कि आई एम ऑथेंटिक, आई एम ऑनेस्ट, रादर देन बस चालू हो गए हाउएवर, बट लाइक यू नो, एक्चुअली ये सब जो शब्द है ना, ये खाली फिलर्स है, इनको फिलर्स बोलते हैं. ये फिलर्स आप तब यूज करते हो जब आप थॉट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हो. जब Yes. एक स्पीकर एक से दूसरी चीज में जा रहा है और उसको वो एक 10 seconds उसको, तो आप यू नो हाउ इट इज, ऐसे करके वो अचानक वो उसको करें, तो दीज आर फिलर्स. अवॉइड दीज फिलर्स, कलेक्ट योर थॉट्स, जो भी बोलो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो और हम्बल रहो कि नहीं आता है तो मान लो. तो ये दिखाना कि मुझे सब आता है इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट एन Hmm. इंटरव्यू डज इन एन इंटरव्यू. So accept whatever you don't know, smartly trigger the conversation to a space which is your strength, which is your domain. Okay. And बाकी तो देखो, बहुत बार ये होता है कि हम ये मैंने एक पार्ट बोला, जैसे हम एंटर किए, मैंने बहुत बार देखा लोग ऐसे ही स्ट्रेट अवे चेयर पे बैठ जाते हैं, ये मुझे अभी ध्यान आया. तो उससे पहले आप पूछो कैन आई टेक द चेयर, और सबको अगेन हैंडशेक हम इसकी बात हमने नहीं की, तो नाउ आई विल कवर दैट. तो द मोमेंट यू एंटर, स्टेडी एंड यू नो आपका आई कांटेक्ट एकदम कॉन्फिडेंट एंड द हैंडशेक, इट हैज टू बी फर्म. ऐसा ढीला हैंडशेक, मैंने परसों किसी इतना ऐसा ढीला मरा हुआ हैंडशेक, हाँ. तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे दिखेगा, राइट? अथॉरिटी क्या, तो हैंडशेक हैज टू बी फर्म, बट इतना भी स्क्वीज भी नहीं कर देना. सो इट हैज टू बी Hmm. फर्म, एंड जो आपका हाथ है इट हैज टू बी इन 90 डिग्री, ठीक है? तो ऐसे नहीं, या फिर ऐसे आप यू नो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इट हैज टू बी एन आर्म्स लेंथ एंड एट 90 डिग्री. ये करके साथ में आई कांटेक्ट, स्माइल, और मेरा नाम शशि जैन, इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ कोच.
इट हैज टू बी साइमल्टेनियस. हाथ मिला लिया, उसके बाद बोला शशि जैन, टेडेक्स स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं. हाथ मिलाते हुए, स्माइल, आई कॉन्टेक्ट स्टडी एंड गिविंग योर इंट्रोडक्शन. शशि जैन, इमेज कंसल्टेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, लाइफ कोच एंड टेडेक्स स्पीकर. ग्लैड टू मीट यू. यहाँ पर मैं ना एक पर्सनल अपना शेयर करना चाहूँगा व्यू पॉइंट, सिंस मैंने भी 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड दूसरे में आई गॉट प्लेस्ड. सो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. मैंने ऐसा देखा कि जहाँ हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग देयर टू सेल आवर एक्सपर्टीज़. जिस चीज़ में आप, जिस डोमेन में आप अपने जाने वाले हो, उसको आप सेल करने वाले हो. सो इट इज़ अगेन ऑल कम अप्स देन कि आप कैसे इंटरव्यूअर के सामने कैसा अपना परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो. अगर आपको एक इंस्टेंस के लिए मैं एक वो लेता हूँ सिनेरियो. इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आपको प्रीमियर प्रो आता है क्या, जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है. तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में जो टेक अवेज लिए थे कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, कि मुझे ना नहीं बोलना है, मैंने सर को बोला कि नहीं सर, मैं आई एम स्टिल लर्निंग फेस, मुझे वो अभी मतलब बेसिक्स पूरे पता है. तो आई डिडेंट डिनाई दैट कि मुझे वो आता नहीं है, है ना. तो इट स्टिल शोज़ कि ना मेरा एक लर्निंग एटीट्यूड है वहाँ पर, कि मैं वो सीख रहा हूँ एंड चीज़ों को अगर नहीं आती है तो मैं कर रहा हूँ. ऑल्सो एक फ़नी इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑडियंस के साथ. मैं जब कैबिन के अंदर एंटर हुआ था तो पूरा चिल्ड कर रखा था इंटरव्यूअर ने एसी चला के, और आई वॉज, जब मैं ना अपना आंसर्स दे रहा था, आई वॉज लिटरली शिवरिंग थोड़ा बहुत. एंड मैंने इतना थॉट नहीं लगाया कि मैं उनको बोल दूँ, क्योंकि आई वॉज इतना लॉक्ड इन कि आंसर्स, उन्होंने क्वेश्चन पूछते मैं आंसर्स दूँ, इतना ज़्यादा लॉक्ड इन था कि मैंने जिक्र ही नहीं करा कि आप एसी टर्न ऑफ कर दीजिए. तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई सामने आमने सामने बैठे हैं और ऊपर फ़ैन चल रहा हो, या फिर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस हो जिससे उसके बाल उड़ रहे हो या फिर वो शिवर कर रहा हो, ठंड लग रही हो, तो उसको फर्म वे में कैसे बोला जाए. तो वही assertiveness and confidence and politeness again. तो you have to ask, sir, या तो हो सकता है ना किसी को बुखार भी हो, या किसी हाँ. को सर्दी जुकाम हो और उसको लग रही है, या फिर आपको वो टेम्परेचर, क्योंकि बाकी लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, हो सकता है वो सूटेड बूटेड ऐसे. तो आपको ये चेक करना होगा. टू अगेन आस्क दैट, सर, आई एम फीलिंग लिटिल कोल्ड एज आई वाज little down on my health. So can this be moderated a little? इसको थोड़ा सा कम किया जाए, because I'm feeling little cold. So can this be done? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ओके. सर मेरे को कल बुखार हो गया था इसलिए मैं आज आ गया, फिर भी इंटरव्यू में ये भी नहीं दिखाना है आपको. बहुत सटल वे ऑलराइट. में बोलना है कि I was not keeping good health, and maybe if the AC could be moderated a bit, if you all are comfortable, then can the temperature be increased a bit? So can, if you all are comfortable, again आपको वो देना होगा और बोल देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वो ठंड में आप फिर राइट. वो सोचेंगे कि आप नर्वस आंसर्स हैं. में भी. हाँ. राइट. राइट. समटाइम्स ठंड लगी हो, आप ऐसे बैठे, अब वो सोचेगा अरे ये तो क्लोज्ड है, ये तो डिफेंसिव है, ये तो ओपन नहीं यस. है. तो दोनों परसेप्शन हो सकते हैं ना. तो आप पहले कंफर्टेबली, हमेशा कंफर्ट और वो कूल होके अपने स्किन में, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप कुछ भी परमिशन मांग के कर रहे हो और काइंडली और प्लीज और अच्छे से आप बोल रहे हो, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है. और फिर देखो, डोमेन नॉलेज तो होना ही पड़ेगा. अब ऐसे आप बोलोगे भाई हाँ. इंजीनियर नहीं हूं. अब 2 आईआईटी से इंजीनियर है, लेकिन जिसके सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, जिसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा होगा, जो प्रेजेंटेबल होगा, राइट. ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में अपीयरेंस और सभी कुछ ले रही हूँ, दोनों एक ही ग्रेड हो सकता है, एक ही मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग हो सकती है, लेकिन जिसके सॉफ्ट स्किल्स बेटर होंगे, जो प्रेजेंटेबल ज्यादा होगा, जो ओवरऑल जिसकी हाँ. इमेज बहुत ही इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल होगी, उसी को चांस मिलेगा. सो इफ यू वांट टू हैव एन एज ओवर अदर्स, इफ यू रियली वांट टू स्टैंड आउट, देन यू हैव टू होन योर सॉफ्ट स्किल्स. सो या आई वाज सेइंग कि हम उस वाले एरा में आ गए हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल को है ना हर डोमेन के अंदर थोड़ा बहुत अपस्केल रहना ज़रूरी है. लाइक पहले हम नहीं बात कर रहे थे कि इम्प्रेशंस और क्या लुक्स, क्या किस तरीके से अटायर पहना हुआ है. अब यहाँ पर ऐसा एरा हो गया है कि यहाँ पे एक यंगस्टर भी है तो वो भी ट्राई कर रहा है कि ग्रूमिंग स्किल्स और इसकी होनी चाहिए, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस. एंड मैं ना अपनी स्टोरी में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा जो ऑब्वियस वाली मैं बता रहा था
कि जब मैंने एक आंसर दे दिया था तब उनको लगा कि ना मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि वो जो कैबिन था ना बहुत ज़्यादा एंक्लोज्ड था और उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडक हो जाती थी और बड़ा एसी लगा हुआ था। अब उस एसी के अंदर जैसे सर ने टर्न ऑफ करा ना, तो उस एसी के अंदर जाने का कॉन्फ़िगरेशन थी कि वो 1 डेढ़ मिनट बाद बंद होता है वो। तो जब तक है ना मैं सोच रहा था ये कब बंद होगा ये तो आई वॉज दैट इन दैट सिनेरियो और वो मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू में, सेकंड वाला जो था। वेल आई गेस ऑडियंस Understood. को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एंड आई लाइक टू थैंक शशि फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद मी एंड होप यू लाइक्ड इट एज वेल। Yes, yes, it was, as I said, straight from my heart, and I liked your questions and the scenarios. आप एक के बाद एक सिनारियो ला रहे थे, जैसे कि वो एग्जाम से होता है ना, रट्टा मार के तुम पास नहीं हो सकते, तुमको केस स्टडीज देंगे, तो तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही तुम जवाब दे सकते हो। सो मुझे लग रहा था हाँ आ रहे, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज नॉट क्लीशेड एंड डूज एंड डोंट्स। बिकॉज देखिए, हम जब ऐसे सिनेरियोज एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं ना, पीपल हैव एन आइडिया, और जब यही चीज उनके जिंदगी में, इतने सारे ऑडियंस में कहीं ना कहीं किसी का इंटरव्यू होगा, कभी ना कभी कोई पैनल में होगा, कभी किसी दोस्त ने टोका होगा, तो वो हमारे इस कॉन्वर्सेशन को रौनित अगर याद करके बोलेंगे, अरे हाँ शशि ने ये बोला था, रौनित ने ये पूछा, तो अगर हम कहीं ना कहीं उनके दिल को छू पाए हैं, और कहीं उनके वो ये स्किल जो भी मैंने शेयर किया है, जो भी मैंने जीवन में सीखा है, ये सारी सिर्फ इमेज कंसल्टेंसी या सॉफ्ट स्किल्स की बात नहीं है, ये सारे एथिक्स एंड वैल्यूज जो मेरे पापा मम्मी ने मुझ में डाले एज अ फैमिली, फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो सारी अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग, जैसे मैंने बोला, तो ये सारे का एक खिचड़ी है जो आज आई एम दैट, या आई होप दिस एड्स वैल्यू, एंड किसी को कहीं ना कहीं इससे मदद हो, और वो जिंदगी में आगे बढ़े और ग्रो करे। इसी इंटेंट से ये सारे पॉडकास्ट होते हैं। तो आई रियली एंजॉयड एंड आई लव्ड शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। Thank you so much for having this conversation, and thank you so much. All right then, audience, we'll see you in the next podcast. Bye bye. थैंक यू, बाय बाय।